گلشن ہفتے کے موضوعات: احساسات کا پتہ لگانا، ہم آہنگی، میٹھی اور تلخ، زیادہ کوششیں، سیکھنا مزہ ہے اور کوئی غفلت نہیں۔ ہفتہ کا ایک خاکہ: فن سیکھنا اور تفریحی ہفتہ۔ آپ اپنے ساتھی کے لیے موجود تھے اور وہ بس یہی چاہتے تھے، لیکن اس کے درمیان سچائی اور احساسات کو غلط فہمی ہوئی جس نے آپ کے محبوب کو طویل عرصے تک پریشان رکھا۔ اپنے پیارے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ شادی شدہ ورشب ہفتے کے پہلے حصے میں گرم ریت پر چلنے کی طرح محسوس کر سکتا ہے، لیکن آخری نصف اچھا نکلنے کا امکان ہے۔ آپ اپنے جیون ساتھی اور خاندان کے ساتھ بہتر مستقبل کے لیے کچھ اہم خاندانی فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مالی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم آہنگی کا احساس غالب ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان ہم آہنگی کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اچھے مالی حالات ہو سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن اور آپ کی قسمت کی وجہ سے دولت کی جمع آوری ہو سکتی ہے، تاہم آپ کو خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے گھریلو ضروریات کا خیال رکھنا یقینی بنائیں۔ آپ کو مذہبی کاموں میں بھی ملوث ہونا پڑ سکتا ہے اور ایسی تقریبات پر بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان اعمال سے معاشرے میں آپ کی ساکھ بڑھنے کا امکان ہے۔ اپنے کیریئر میں ہمیشہ اپنی کارکردگی اور ذہانت پر بھروسہ کرنا یاد رکھیں، کیونکہ دن کے اختتام پر یہی آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جاننا اور پرکھنا سیکھیں جو آپ کے چہرے پر میٹھے ہیں لیکن آپ کی پیٹھ کے پیچھے کڑوے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اچھے نتائج آنے کا امکان ہے۔ کاروبار میں زیادہ محنت کرنا آپ کے لیے کامیابی کی راہیں کھول سکتا ہے اور آپ کے لیے سرکاری شعبے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو غیر ملکی ذرائع سے مالی فوائد اور کام میں پیش رفت کی عکاسی کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ اس وقت سیکھنے کا فن مزہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو اپنی فاؤنڈیشن اور اس علم کو بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی دلچسپی کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے درکار ہو سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے صحیح وقت ہے جو مسابقتی امتحانات دینے کا منصوبہ بنا رہے۔ ہفتہ ہر ممکن سمت میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو مطلوبہ تکلیف دے سکتا ہے۔ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہفتہ بہت اچھا گزرنے والا ہے، جہاں آپ کو صحت سے متعلق کئی مسائل سے نجات ملنے کا امکان ہے۔ تاہم نشانی رب کی وجہ سے غیر ذمہ داری سے کام نہ کریں یا اپنے اعمال میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس عرصے میں ضرورت سے زیادہ سستی کی وجہ سے آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ صبح و شام چہل قدمی یا جاگنگ آپ کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زیادہ جوس پئیں اور اپنی خوراک میں رطوبتیں بڑھائیں۔ اس کے علاوہ خود کو تناؤ سے پاک رکھنے کے لیے آپ کو اس ہفتے یوگا یا مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ محبت و قرابت: صبر کلید ہے۔ صبر کرنے کی کوشش کریں اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اپنے ساتھی تک اپنے پیغامات واضح طور پر پہنچا دیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ہفتے کے پہلے نصف میں نازک وقت گزر سکتا ہے، تاہم دوسرا نصف آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اور زندگی میں ازدواجی خوشحالی ہو سکتی ہے۔ کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں جو آپ کے اہل خانہ کے ذریعے لیے جا سکتے ہیں اور آپ کی ہفتہ وار محبت کی پیشین گوئیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ صحت اور تندرستی: اپنی صحت کو برقرار رکھیں۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی کھانے کی عادات پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مدت میں متوازن غذا اور مناسب ورزش ضروری ہے۔ ہفتے کے وسط میں آپ کی صحت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ آپ اس ہفتے کم محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کی قوت برداشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات: آمدنی اور اخراجات میں توازن۔ آپ کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان ہم آہنگی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مالی حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشنیں آپ کو دولت جمع کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ قسمت آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کے معاشی حالات بہت مضبوط ہیں، تاہم آپ کو خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے
بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مذہبی کاموں میں ملوث ہوں اور ایسے واقعات پر بہت زیادہ خرچ کریں۔ کیریئر، ملازمت اور کاروبار۔ اپنے گٹ پر بھروسہ کریں۔ جب بات آپ کے کیریئر کی ہو تو اپنی جبلتوں پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ آپ کے حق میں کام کر سکتی ہیں۔ مخالفین سے ہوشیار رہیں تو بہتر ہوگا۔ سرکاری شعبے سے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور اس طرح کاروباری لوگوں کے لیے سرکاری شعبے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا سود مند ثابت ہوگا۔ یہ آپ کو غیر ملکی ذرائع سے مالیاتی فوائد اور کام میں پیش رفت کی عکاسی کرنے کے قابل بنائے گا۔ تعلیم و تربیت۔ تفریحی سیکھنا۔ اس ہفتے کے دوران سیکھنا مزہ آئے گا جو آپ کے کام کے علم کو بہتر بنانے اور اپنی دلچسپیوں اور مشاغل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے درکار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے صحیح وقت ہے جو مسابقتی امتحانات دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہفتہ ہر طرف اچھا ہو سکتا ہے جو آپ کو مطلوبہ تکلیف دے سکتا ہے، اس لیے محنت سے مطالعہ کریں۔ ستارے آپ کے ساتھ ہیں، اپنا بہترین دیں۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔ برج سور۔ ہفتے کے موضوعات: پسند اور ناپسند کا اشتراک، سفر، خوابیدہ حالت اور مصروف ہفتہ۔ ہفتہ کا ایک خاکہ: زندگی دیدار کا کھیل ہے۔ آپ کو اپنے دوست اور اپنے آپ کو متوازن کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے تاکہ آپ دونوں اس سے لطف اندوز ہوں۔ اسی طرح ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان مناسب توازن رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ آپ کو جو کچھ پیش کرتی ہے اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ ہفتہ تقریبات سے بھرا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا شیڈول مصروف ہو سکتا ہے اور آپ کے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کم وقت رہ جائے گا۔ جگہ دینا ضروری ہے لیکن محبت اور توجہ بھی۔ توجہ کی کمی آپ کی محبت کی زندگی کو الٹا کر سکتی ہے۔ عزیز میش، آپ کے دوست آپ کو تجاویز دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت گزارنے کی کوشش کریں اور اپنی پسند اور ناپسند کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ رشتہ طویل مدت تک چلے۔ یہ ہفتہ رقم اور مالی معاملات کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا ہے۔ بس ایک اخراجات کا ایکشن پلان بنائیں اور اس پر قائم رہیں۔ جیسا کہ مشتری اور سورج کی آمد و رفت کچھ مالی بحران کی پیش گوئی کر رہی ہے، آپ میں سے کچھ کے لیے غیر ملکی سفر کارڈ پر ہے۔ مریخ اور عطارد کی آمد و رفت آپ کو آپ کی ملازمت سے غیر متوقع فائدہ حاصل کرے گی لیکن کچھ پوشیدہ اخراجات بھی۔ یہ ٹرانزٹ قانون کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور دوسری طرف کاروبار میں لوگوں کو ہراساں کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنے سسرال، تحائف اور اپنے خاندان کے ساتھ چھوٹے اجتماعات پر بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ مریخ کی راہداری آپ کو اپنے دفتر میں کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے عزم اور محنت سے آپ کو مطلوبہ نتائج ملنے کا امکان ہے کیونکہ مشتری اور زحل کی آمد ہے۔ غیر ملکی کاروباری سودے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لارڈ آف دی رنگز آہستہ آہستہ ترقی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو اچھے منافع کے ساتھ مشکل وقت سے باہر لے آئے گا۔ مشتری اور عطارد کی آمد و رفت صرف عملی نقطہ نظر کی تعریف کرتی ہے نہ کہ خوابیدہ حالت کی۔ انجینئرنگ کے طلباء کو اس ہفتے مطلوبہ کامیابی ملے گی۔ ایک نئی زبان سیکھنا، بیرون ملک سفر کرنا اور اپنی پڑھائی میں مشغول ہونا کارڈز پر ہے۔ مطالعہ کے طویل گھنٹے آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے تھوڑی دیر میں ایک بار وقفہ لیں، صحت مند غذا کھائیں اور ورزش کریں۔ صحت کے بارے میں لا علمی بالکل نہیں ہے، اب پر پہلے سے ہی کام کا بوجھ اور تناؤ زیادہ ہے۔ پتوں والی سبزیوں کو باہر کے کھانے سے بدل دیں، اس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ OTC ادویات کا استعمال نہ کریں اور جلد سے متعلق انفیکشن سے محتاط رہیں۔ اس ہفتے کے آخری مرحلے میں آپ کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے مصروف گزرنے والا ہے۔ گہری سانس لینے کی مشق کریں کیونکہ یہ آپ کو تناؤ اور اضطراب سے باہر آنے میں مدد دے سکتا ہے۔ محبت و قرابت، آپ کا نیا آؤٹ لک۔ ہفتہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کا ہے۔
آپ کا مصروف شیڈول آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بامانی وقت گزارنے سے روک سکتا ہے۔ نئے رابطوں کے لیے یہ ایک اہم ہفتہ ہے۔ سورج اور عطارد کی آمد و رفت محبت اور رشتوں کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو بدل سکتی ہے۔ ایک اچھا ہفتہ اور خوشگوار رشتہ دونوں شراکت داروں کے ایک دوسرے سے عہد کرنے اور ایک دوسرے کو کچھ جگہ دینے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی، جنک کو پتی کے ساتھ تبدیل کریں۔ اس ہفتے صحت خطرے میں ہے، لہذا ہوشیار رہنا۔ کام کا بوجھ اور تناؤ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے جارحانہ ہونے سے گریز کریں۔ جنک فوڈ کو پتوں والی سبزیاں اور پھلوں سے بدل دیں۔ آپ کی قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے حاملہ خواتین کو اپنی غذائیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ہفتے کا آخری مرحلہ بہتر صحت فراہم کر سکتا ہے۔ تناؤ سے پاک رہنے کے لیے گہرے سانس لینے اور بار بار ورزش کی مشق کریں۔ مالی معاملات، آپ کا نیا آؤٹ لک ہفتہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کا ہے۔ آپ کا مصروف شیڈول آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بامانی وقت گزارنے سے روک سکتا ہے۔ نئے رابطوں کے لیے یہ ایک اہم ہفتہ ہے۔ سورج اور عطارد کی آمد و رفت محبت اور رشتوں کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو بدل سکتی ہے۔ ایک اچھا ہفتہ اور خوشگوار رشتہ دونوں شراکت داروں کے ایک دوسرے سے عہد کرنے اور ایک دوسرے کو کچھ جگہ دینے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیریئر، ملازمت اور کاروبار، محنت اور کامیابی ایک ساتھ کام کرتی ہے۔ مریخ کی آمد و رفت آپ میں سے کچھ کے لیے کام کی جگہ پر فائدہ مند رہے گی۔ مشتری اور زحل کی آمد و رفت بتاتی ہے آپ کا عزم اور محنت رنگ لائے گی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ محنت اور استقامت آپ کو زندگی میں بہت دور لے جاتی ہے۔ مریخ اور مرکری کا ملاپ قانونی فتح کے حق میں ہے۔ مرکری اور مریخ کی آمد و رفت آپ کے کاروباری پارٹنر کے ساتھ غیر ضروری بحث کا سبب بن سکتی ہے۔ غیر ملکی کاروباری معاہدہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت، خواب دیکھنا بند کریں اور حقیقت پسند بنیں۔ انجینئرنگ کے طلباء کے لیے اس ہفتے کے اگلے دنوں میں کامیابی آئے گی۔ دن میں خواب دیکھنے سے گریز کریں اور حقیقت پسند بنیں کیونکہ مشتری اور عطارد منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ اس ہفتے پریشان ہو سکتے ہیں۔ راہوں کا گزر نئی زبانیں سیکھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ چونکہ طویل گھنٹے کا مطالعہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے صحت مند غذا اور ورزش کے ساتھ مناسب شیڈول رکھیں۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔ برج جوزہ، ہفتے کے موضوعات: محفوظ تعلقات، مالی مسائل، زیادہ اعتماد اور کمزور سیاروں کا اثر۔ ہفتہ کا ایک خاکہ: ہر دن مختلف ہے، اپنی فطری صلاحیتوں پر توجہ دیں، سیاروں کو اپنا کردار ادا کرنے دیں۔ آخر میں، سب کچھ طے شدہ ہے، جو ہمیشہ اب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کے ساتھی کو اپنے رشتے میں محفوظ محسوس کرنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ آپ مختصر اور خوبصورت سفر پر جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے رومانوی تعلق قائم ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، اگر آپ اپنے ڈیٹنگ پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ مثالی ہو سکتا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سخت محنت کے ذریعے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بار پھر آپ کا ہفتہ ہے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک نئی کمپنی شروع کرنا بھی ممکن ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہر قسم کے مالی لالچ سے بچیں۔ دوسرا نصف مالی تبدیلیوں آپ فیصلے کرنے کے لیے نمایاں طور پر بہتر ہوگا۔ کسی ایسے شخص کو قرض نہ دیں جو آپ کے معاملات میں مشکوک نظر آئے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے پیسے واپس نہ لے سکیں۔ کچھ سستی یا لاعلمی آپ کی ترقی کو سست کر سکتی ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ، آپ کو صحت مند غذا کے منصوبے پر قائم رہنے اور ہفتے کے دوران اچھی خوراک پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں اور اپنے پیاروں کے لیے کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں الہامی وحی لا سکتا ہے۔ یہ آپ کی کوششوں کا بدلہ دے سکتا ہے اور آپ کو مضبوط تعلقات استوار کرنے کے نئے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ کو الحاق کے کاروبار میں کامیابی کے لیے قسمت سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ اسے پھینکنے اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہفتے کے آخر تک سیارے ایک متحد رشتہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کر رہے ہوں۔ تاہم، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ صرف ضروری جگہوں سے لنک کریں۔ کچھ پیچیدہ صورتحال کے نتیجے میں اس ہفتے کے وسط میں آپ کی پیداوری اور مہارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس ہفتے کا دوسرا نصف سرمایہ کاری یا سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ بہتر انتخاب فیصلے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخری دن اچھے ہو سکتے ہیں اور ان کا آپ کی مالی حالت پر مثبت اثر پڑنے کا امکان ہے۔ جس طرح سے آپ ہفتے کے آغاز میں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ باقی ہفتے کے لیے معیار قائم کر سکتا ہے، اس لیے چوکس اور پر اعتماد رہیں۔ آپ اپنے فیصلوں اور صلاحیتوں کے بارے میں شکوک محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے مستقبل کے مواقع کے بارے میں شکوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کو موجودہ کاروباری حالات کی بنیاد پر اس ہفتے اپنے اہداف کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ شکوک آہستہ آہستہ گزر سکتے ہیں اور آپ اس ہفتے کے دوسرے نصف حصے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے برکت والا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، حد سے زیادہ اعتماد آپ کی ترقی کو روک سکتا ہے۔ غفلت یا لاپرواہی بھی آپ کی ترقی کو متاثر کر سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، آپ کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کے وسط میں کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے جو آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ آخری سیکشن آپ کو یہ جاننے میں بھی مدد دے سکتا ہے کہ اپنے اہداف کے قریب کیسے جانا ہے۔ ہفتے کے آخر تک آپ مستقبل کے لیے واضح منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار صحت کے ذائچے کے مطابق مشتری اور زحل کا مرض کے گھر میں ہونا آپ کو ذہنی الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو منفی خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے مختلف طریقے آزمانے چاہئیں۔ اس کے علاوہ، کچھ پیشین گوئیاں بتاتی ہیں کہ آپ کو صحت کے کچھ معمولی مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند غذا کے منصوبے پر قائم رہیں اور روزانہ ورزش کے ساتھ اپنی غذائیت پر توجہ دیں۔ یہ آپ کی صحت کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ محبت و قرابت، ناقابل فراموش یادیں۔ اس ہفتے کا رشتہ سنگلز کو اچھے نتائج دے سکتا ہے اگر وہ ساتھی کی تلاش کر رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو ایک ہفتہ کامیاب بنانے کے لیے معیاری وقت دینا چاہیے۔ آپ کی طرف سے پیغامات اور تحائف آپ کے ساتھی کو خوش کر سکتے ہیں اور آپ کا تعلق بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی مقدس مقام پر جا کر کچھ ناقابل فراموش یادیں بنائیں۔ صرف مشورہ یہ ہے کہ غلط رابطے سے بچیں کیونکہ یہ تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی، جنگ کو پتوں کے ساتھ تبدیل کریں۔ اس ہفتے صحت خطرے میں ہے، لہذا ہوشیار رہنا۔ کام کا بوجھ اور تناؤ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے جارحانہ ہونے سے گریز کریں۔ جنک فوڈ کو پتوں والی سبزیاں اور پھلوں سے بدل دیں۔ آپ کی قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے حاملہ خواتین کو اپنی غذائیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ہفتے کا آخری مرحلہ بہتر صحت فراہم کر سکتا ہے۔ تناؤ سے پاک رہنے کے لیے گہرے سانس لینے اور بار بار ورزش کی مشق کریں۔ مالی معاملات، سسرال کا منافع۔ یہ ہفتہ بچت کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ کو ترجیحی بنیاد پر اخراجات کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کچھ غیر متوقع سفر، کار یا نقل و حمل سے متعلق اخراجات وصول کر سکتے ہیں۔ مخفی سائنس کو مذہبی سرگرمیوں اور داخلہ پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زچگی کے خاندانوں کو مالی امداد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے کچھ سسرال سے جائیداد کے اخراجات یا نقد فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مشتری کی برکت آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ کیریئر، ملازمت اور کاروبار۔
نئے اختراعی آئیڈیاز۔ آپ میں سے کچھ کو اس ہفتے ایک مصروف شیڈول مل سکتا ہے۔ بین الاقوامی کاروباری کالنگ اور کیریئر میں تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ عمل درآمد سے پہلے اپنے منصوبے کو ظاہر نہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے کاروباری پارٹنر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے ایک صحت مند بحث کریں۔ ایک عملی رویہ آپ کو کام میں مدد کرتا ہے۔ اس ہفتے فیشن اور آرٹ سے متعلق کیریئر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ انٹرنیٹ پلیٹ فارم پر ہیں وہ جدید خیالات کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، اپنی حقیقی صلاحیت کو ختم کرنا۔ طلباء کے لیے ہر طرح کی سیکھنے کے لیے اچھا ہفتہ۔ آپ کسی مقابلے میں حصہ لیں گے اور آپ کا ساتھی ججوں کو متاثر کرے گا، جو آپ کو بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنی حقیقی مہارت اور صلاحیت کا احساس ہوتا ہے، جو ایک طویل عرصے سے پوشیدہ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔ ہفتے کے موضوعات۔ سنگلز کے لیے اچھی خبر، آگے کے غیر متوقع اخراجات، سرپرست کا تعاون، اچھی صحت۔ ہفتہ کا ایک خاکہ۔ اپنی ہفتہ وار پیشن گوئی حاصل کرنے کے لیے شیشے کے ذریعے دیکھیں۔ یہ ہفتہ ماضی کے خود شناسی کے بارے میں ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے بات کریں اور وہ صحیح فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی توجہ کو بہتر بنائیں اور جلد مطلوبہ نتیجہ حاصل کریں۔ کسی بھی کاروباری منصوبے پر عمل کریں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے مستقبل کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ آپ کی کمائی کو بہتر بنا سکتا ہے اور آپ کو کچھ اعتماد بھی دے گا۔ کیریئر کے لحاظ سے آپ اپنے راستے کو ہموار بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نتیجہ خیز رہنے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سماجی ہونے کے لیے زیادہ دور نہ جانا پڑے، کیونکہ آپ کا خواب دیکھنے والا ساتھی صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ آپس میں گھل مل جانے اور اپنی محبت کی زندگی کو اگلی سطح تک بڑھانے کے لیے تیار رہیں۔ اپنی بہترین خصوصیات کا اعلان کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جو لوگ شادی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بچے کی توقع کرنے والے جوڑے اچھی خبر سن سکتے ہیں۔ مالی طور پر آپ کو بیٹھ کر آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی خبر کونے کے ارد گرد ہے۔ مالی عدم تحفظات دور ہو سکتے ہیں، تاہم آپ کے بٹوے کو پنکچر کرنے سے خرچ زیادہ ہو سکتا ہے۔ خاندان سے متعلق اخراجات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ طبی بلوں کی شکل میں ہو سکتا ہے جو ناگزیر ہے۔ بس ایسے اخراجات کا انتظام کریں کیونکہ یہ عارضی ہے۔ اس ہفتے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں شامل کرنے سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ کو کیریئر کے محاذ پر اپنے ساتھیوں سے تعاون ملنے کا امکان ہے۔ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں۔ تفریحی صنعت سے وابستہ لوگوں کو ترقی کے لحاظ سے اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے تمام پیشہ ورانہ اہداف پورے ہو گئے ہیں۔ پیشہ ورانہ رابطے بھی آپ کے استعمال میں آ سکتے ہیں اور آپ کچھ دلچسپ پروجیکٹس شروع کر سکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ اس تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔ تاہم سیکھنے کے لحاظ سے ایک مشکل ہفتہ اشارہ کیا گیا ہے۔ خلفشار آپ کو توجہ سے محروم کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اضافی کوشش کی ضرورت ہے۔ مباحثہ یا تقریری مقابلے میں سبقت حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیاری کریں۔ ہنر مندی کے پروگراموں کی تلاش میں طلباء کو اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا سرپرست مل سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے اچھا رہنے کا امکان ہے۔ غذائی کنٹرول پر توجہ مرکوز کرنے والے افراد کو تازہ اور گھریلو کھانوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ اب سختی سے سبزی خور غذا اپنانے پر غور کر سکتے ہیں اور ہاضمے کے کسی بھی مسئلے کا شکار غذا میں تبدیلی سے حل ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو وزن کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وقت سازگار اور حوصلہ افزا لگ سکتا ہے۔
صحت کے لحاظ سے اس کے طویل مدتی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پرانی عادات کو چھوڑ دیں۔ صحت کے حوالے سے توجہ میں بہتری آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا سکتی ہے۔ محبت و قرابت۔ اگلی سطح پر رومانس۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنا گھر چھوڑے بغیر بھی سماجی ہونے دے سکتا ہے۔ یہ ہفتہ وعدے کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی بہترین خوبیوں کا فخر سے اعلان کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سب کچھ آپ کے مطابق ہو۔ اگر آپ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بھی خاص وقت مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی سمجھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جوڑے بچے کی پیدائش کے حوالے سے اچھی خبر کی توقع کر سکتے ہیں۔ صحت اور تندرستی۔ صحت پر بہتری۔ یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے اچھا لگتا ہے۔ آپ صرف گھر کے پکائے ہوئے پکوانوں کا انتخاب کر کے اپنی خوراک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ غذائیت سے بھرپور خوراک کی وجہ سے آپ کی مجموعی صحت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنے اور وزن کم کرنے کی ترغیب بھی مل سکتی ہے جو آپ کی صحت کو سہارا دے سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں آپ اپنی توجہ کو بہتر بنانے پر غور کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات۔ مالیاتی محاذ۔ آپ کو اپنے مالیاتی محاذ پر اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ اپنی مالی رکاوٹوں کو جلد ہی عبور کر سکتے ہیں۔ خاندان سے متعلق کچھ اخراجات آپ کے مالیات کو دبا سکتے ہیں۔ آپ بھاری میڈیکل بلوں کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں جو حال ہی میں آئے ہیں۔ آپ کو ان بلوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ اس ہفتے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں نہ پڑنے کا مشورہ ہے۔ کیریئر، ملازمت اور کاروبار۔ ترقی یافتہ کاروبار اور کیریئر۔ آپ کو اپنے ساتھیوں سے اچھا تعاون اور مدد مل سکتی ہے جس سے آپ کے کاروبار کو پھلنے پھولنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ تھیٹر یا فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہو۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے تمام پیشہ ورانہ اہداف حاصل کرنے دے سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے دلچسپ پروجیکٹس بھی مل سکتے ہیں اور اس سے آپ کی تعریف ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ پیشہ ورانہ رابطوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ بہترین کی تیاری کریں۔ یہ ہفتہ سیکھنے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ یہ اضافی کوشش کرنے اور بہترین کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مباحثے یا تقریر کی تیاری کرنے والے طلبہ تیاری میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی توجہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مہارت بڑھانے کے کسی پروگرام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا سرپرست مل سکتا ہے۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔ برج اسد۔ ہفتے کے موضوعات۔ محبت میں مواصلات، مضبوط مالیات، صحت پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہفتہ کا ایک خاکہ موقع آپ کے راستے میں آ رہا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک نیا موقع فراہم کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں منافع بخش اور نتیجہ خیز ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں وسط ہفتہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے کیونکہ اس مدت میں بڑے لین دین کا تصور ممکن ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ہفتہ آپ کو اپنی مالی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کے وسط میں آپ بڑے لین دین کو حتمی شکل دے سکتے ہیں یا اپنے مالی امکانات سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ پریشان کن حالات ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا دوسرا حصہ ذاتی امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کی تعلیم مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ کی ثابت قدمی کا انعام ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بالآخر اپنے ماحول میں اچھی تبدیلی دیکھیں۔ اس ہفتے کے دوران آپ اپنی صحت سے زیادہ لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے کی بے قاعدہ عادات یا ضرورت سے زیادہ خوراک صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ شروع میں کچھ پریشان کن حالات ہو سکتے ہیں جو کچھ متضاد جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ جلد بازی میں کام کرنے سے گریز کریں کیونکہ وہ صرف نقصان دہ ہے۔ بہاؤ کے ساتھ جائیں اور اپنے جوابات کو ہفتے کے وسط تک بے ساختہ ہونے دیں۔
इस हफ्ते के निस्फ आखिर में आपको सैयारों के असरात के तहत अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद के लिए बहुत सी अहम बातचीत हो सकती है। ये हफ्ता गालिबन आपको अपनी माली ताकत बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम कर सकता है। किसी भी बकाया मसाइल को हल करने के लिए वक्त का फ़ायदा उठाएं। आप इस हफ्ते माली या सरमायाकारी के मसाइल को समझदारी से निमट सकते हैं। इस हफ्ते के वस्त में आप अहम मुआहिदों को हतमी शक्ल दे सकते हैं या माली इम्कानात से निमट सकते हैं। ये आने वाला हफ्ता नए इलाके को तलाश करने और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने का एक बेहतरीन मौका मालूम होता है। ये हफ्ता आपको एक नया मौका फराहम करता दिखाई दे रहा है। ताहम याद रखें कि अब का रास्ता मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको शदीद मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर इस हफ्ते के वस्त तक। इस हफ्ते के आखिरी निस्फ के दौरान आपको अपने ताक़ुब में कामयाबी का इम्कान है। इसमें पैदावारी और मुनाफा बख्श दोनों होने की सलाहियत है। दरमियानी हफ्ता का दौरानिया तिजारती कार्रवाइयों के लिए अहम हो सकता है क्योंकि इस दौरान कई अहम लेन देन हो सकते हैं। अब हफ्ते के आखिर में इस मसले पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और हफ्ते का इख्तिताम आसानी से हो सकता है। इस हफ्ते आपके माहिरीन तालीम मसरूफ़ और सख्त हो सकते हैं। आप अपनी सलाहियतों और सब्र दोनों का इम्तिहान ले सकते हैं। आपको यहाँ अपनी मेहनत, महारत और अंदरूनी समत पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम ना हो जिसकी वजह से आप इस बार ज़्यादा तनाव का सामना कर सकते हैं। एक मजबूत मई को तैयार करें और बरकरार रखें। जब हफ्ते आगे बढ़ते हैं तो आप बेहतर सैयारों की मदद हासिल कर सकते हैं। आपकी जारी कोशिशों का सिला हो सकता है और आप इस हफ्ते के आखिर तक अपने माहौल में अच्छी तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान आप अपनी सेहत से थोड़ी लापरवाही का शिकार रहेंगे। कुछ सेहत के मसाइल खाने की बेकायदगी या ज़रूरत से ज़्यादा खाने से पैदा हो सकते हैं। इस दौरान मुनासिब वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इस हफ्ते के वस्त में आपकी सेहत में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। आप कम महसूस कर सकते हैं और अपने जोश के निशान तक नहीं। आप इस हफ्ते के आखिरी निस्फ में सेहत के बेहतर हालात की तवक्को कर सकते हैं। आपका आरामदेह तरीक़ाकार मुश्किलात पैदा कर सकता है। मोहब्बत व क़राबत, जज्बाती मुल्हक़ात। हफ्ते का आगाज़ मिले जले एहसासात के साथ हो सकता है और कुछ हालात आपको काफ़ी हद तक उलझा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जज्बाती इक़दामात करने से गुरेज किया जाए क्योंकि वो सिर्फ आपकी ज़हनी हालत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने आप को हफ्ते के वस्त में बहाव के साथ जाने दें। सैयारों की तब्दीलियां आपको कुछ गहरी, बामानी गुफ्तगू करने पर मजबूर कर सकती हैं जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासिर कर सकती है। सेहत और तंदुरुस्ती। अपनी सेहत को बरकरार रखें। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपनी खाने की आदत पर समझौता नहीं करना चाहिए। इस मुद्दत में मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब वर्जिश ज़रूरी है। हफ्ते के वस्त में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। आप इस हफ्ते कम महसूस कर सकते हैं जो आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त को मुतासिर कर सकता है। हफ्ते के आखिर में आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। माली मामलात, माली ताकत में इजाफ़ा। इस हफ्ते का मकसद आपके माली मामलात में आपकी मदद करना है। आप अपने ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वक्त है और आपको अपने माली मामलात को होशियारी से संभालने की ज़रूरत है। आपको हफ्ते के वस्त में कुछ अहम सौदे मिल सकते हैं जो आपके माली इम्कानात को बुलंद करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हफ्ते का आखिरी हिस्सा आपका साथ देगा और आपको मजबूत कर सकता है। करियर, मुलाजमत और कारोबार। मेहनत और कामयाबी एक साथ काम करती है। मरीख की आमदोरफ्त आप में से कुछ के लिए काम की जगह पर फ़ायदामंद रहेगी। मुश्तरी और जोहल की आमद का इशारा है, आपके अज़्म और मेहनत रंग लाएगी। ये हफ्ता आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मेहनत और इस्तिकामत आपको ज़िंदगी में बहुत दूर ले जाती है। मरीख और मरकरी का मिलाप कानूनी फतह के हक़ में है। मरकरी और मरीख की आमदोरफ्त आपके कारोबारी पार्टनर के साथ गैर ज़रूरी बहस का सबब बन सकती है। गैर मुल्की कारोबारी मुआहिदा कामयाब हो सकता है। तालीम व तरबियत, मुताला में चैलेंजेस।
یہ ہفتہ بہت ہی مصروف ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کے صبر کا کافی حد تک امتحان لے سکتا ہے۔ آپ کا باطن آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے اور آپ کو اپنی محنت کے ساتھ ساتھ علم پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سپورٹ سسٹم کی کمی کی وجہ سے آپ کسی قسم کا دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا ہے، سیارے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ کی کوششوں کا صلہ مل سکتا ہے۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔ برج سنبلہ، ہفتے کے موضوعات: ہمدرد بنے، محبت کے دن، سرمایہ کاری کے منصوبے، معاون تعلیمی ثقافت، صحت کے لیے خطرہ۔ ہفتہ کا ایک خاکہ: عظیم یادوں کے ساتھ ایک ہفتہ۔ لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو سادہ اور بے ضرر طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر خاموش رہنے کی آپ کی صلاحیت کو آپ کے آس پاس کے لوگ سراہیں گے۔ تاہم آپ کی جسمانی حالت کی بنیادی وجہ جذبات ہو سکتے ہیں جو اندرونی انتشار کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور ذہنی سنڈروم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کی زبردست کوشش کے ذریعے آپ اپنے خاندان کے ستارے بننے جا رہے ہیں۔ مصروف نظام الاوقات آپ کو اس سفر کو ملتوی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جس کے آپ منتظر تھے، لیکن غمگین نہ ہوں کیونکہ زیادہ سفر آپ کے راستے میں آنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ فلمیں دیکھنے میں اپنے دن گزار سکتے ہیں جو خوشی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ سنگلز اور پرعزم دونوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جوڑے ایک شاندار سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ان کا رومانس دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نرم طبیعت اور آپ کے ساتھی سے عقیدت آپ کو کچھ قیمتی یادیں فراہم کر سکتی ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آرام سے باہر جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک خاندان شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایسا کرنے کا ہفتہ ہے۔ آپ کے ستارے اس ہفتے مالیاتی فائدہ کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ آپ اچھی روزی کما سکتے ہیں اور اپنے مالی توازن میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے نئے منصوبے اور سرمایہ کاری سے غیر متوقع نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی طرح سے منصوبہ بند ماضی کی سرمایہ کاری کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی مالی صورتحال میں اضافہ ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا زیادہ خرچ کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر آپ سروس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہے جس پر آپ طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے کام کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال مثبت رہیں کیونکہ یہ صرف عارضی ہے۔ آپ کو اپنے دنوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے تبدیل کرنے اور ان کا نظم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کا ہفتہ وار ذائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ کام پر غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اپنے کام پر پوری توجہ دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے جو اپنی کمپنیوں میں پارٹ ٹائمر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے لیے صحیح نوکری تلاش کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی جو اس ہفتے انتظامیہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے اسے کریش سبق کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ اب بھی آپ کو طویل عرصے تک ضروری مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعلیمی میدان میں آپ کی کامیابیاں صرف نظریہ سیکھنے تک محدود نہیں ہیں۔ آپ کو پریکٹیکلز کے فوائد کا مطالعہ کرنا ہوگا جس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران گراؤنڈ رہیں کیونکہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ آپ کی صحت کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دائمی صحت کی حالتوں کی کئی علامات ہیں جن کے لیے طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو خارش، کمر میں درد اور ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے۔ جلد صحت یاب ہونے کے لیے آپ کو مناسب علاج کروانا چاہیے۔ آپ کی ہفتہ وار پیشین گوئیوں کے مطابق آپ کو شفا یابی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے۔ سڑک پر اور برقی آلات کے ارد گرد محتاط رہیں۔ یہ ہفتہ زخموں سے نشان زد ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کچھ وزن کم کرنے کے لیے اپنی غذا کو دھوکہ نہ دیں۔ اس ہفتے زیادہ سے زیادہ سیال پیئے۔
मोहब्बत और क़राबत। जो दिल कहता है। यह हफ्ता सब के लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है, सिंगल्स, रिश्ते में रहने वाले और जो शादीशुदा है। हो सकता है कि आप अपने साथी के लिए ठंडी रवैया इख्तियार करें। हफ्ते के दौरान फिल्में देखना और एक साथ वक्त गुजारना इंतहाई मुमकिन है। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम गैर मामूली होगी। आपकी देखभाल करने वाली फितरत और आपके साथी के तय लगन आपको कुछ खुशगवार यादें दिलाएगी। आरामदेह और पुरसुकून बाहर जाने को मत छोड़े। सेहत और तंदुरुस्ती। बॉडी शार्प। अपनी सेहत के बारे में वसी बेदार रहे। इस बात के इम्कानात हैं कि सेहत के कुछ अजीब व गरीब मामलात में तिब्बी मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जिस्म को आंखों में जलन, कमर दर्द और टांगों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। फौरी सेहतयाबी के लिए मुनासिब इलाज करें। सड़कों पर और बरक़ी आलात के करीब होते वक्त मोहतात रहें। अपनी खुराक को सेहतमंद रखें। माए की मिक़दार में इजाफा करें। ज़हनी सुकून और सुकून के लिए मुराक़बा या योगा की मश्क करें। माली मामलात, बैंक और बैलेंस। आपके लिए मालियाती मंजरनामा मजबूत मालूम होता है। रकूम की आमद अच्छी रहेगी, जिससे आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। इस अरसे के दौरान नए प्रोजेक्ट्स सरमायाकारी करने से नाकाबिल यकीन नताइज बरामद होंगे। माजी में बनाए गए असासे आपको बेहतरीन मुनाफा देंगे। इस तरह आपकी माली बुनियादों में बेहतरी आएगी। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि आप कुछ तवील इंतज़ार के मंसूबों को करीब करें। कैरियर, मुलाजमत और कारोबार। दफ्तरी काम। आराम करें और अपने आप को मुतहर्रिक रखें। चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती हैं, लेकिन इससे दुनिया का खात्मा नहीं होता है। वक्त का मुअस्सर इंतज़ाम वक्त की ज़रूरत है। इस बात के इम्कानात हैं कि आप अपने काम में गलतियां करते हैं और अपने हफ्तावार जायचा की पेशगोई करते हैं। तवज्जो के साथ काम करने से मामलात को तय करने में मदद मिलेगी। पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों को कामिल मुलाजमत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तालीम व तरबियत। जब आप सीखते हैं, आप मैनेजमेंट पर कोर्स करने का इरादा कर रहे हैं, जल्द ही इस हफ्ते के दौरान क्रैश कोर्स शुरू करने का मौका मिल सकता है। इससे न सिर्फ आपके सीखने को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके कैरियर को मतलूबा जोर भी मिलेगा जो गायब हो गया था। सबको ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ नज़रियाती इल्म काम नहीं करेगा, अमली तफ़हीम ज़रूरी है। अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल में आसानी पैदा करने के लिए सदका करें और हो सके तो भूखे लोगों को खाना अतिया करें। बुर्ज मीज़ान। हफ्ते के मौज़ूआत। खुद पर काबू, अमन साज, माली तहफ़्फ़ुज़, काम का दबाव, माहिरीन तालीम पर तवज्जो, खुराक पर कंट्रोल। हफ्ता का एक खाका। मोहतात रहने के लिए एक हफ्ता। अपने प्यारों के साथ ज़ाती मसाइल और ज़हनी तनाव से बचने के लिए खुद पर काबू रखना बेहतरीन तरीक़ा है। लिहाजा अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जिस्मानी बीमारियों और ज़हनी तनाव से बचने के लिए एक मशवरा यह है कि ज़्यादा खाने और अल्कोहल से परहेज़ करें। अपने करीबी अजीज़ों के साथ वक्त गुजारना उनके लिए खुशी का तोहफ़ा है। लिहाजा अपने बैग पैक करें और अपने प्यारों के साथ एक खूबसूरत जगह पर एक हफ्ता गुजारें। इत्तेहाद का यह वक्त आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। आप वो हैं जो आज़ादी से मोहब्बत करते हैं और ख़ुद मुख्तार भी, लेकिन इन खसलतों के इजहार से दूसरों को बुरा लग सकता है और वो अपने जहन में कोई गलत तस्वीर बना सकते हैं। अपने बच्चों और उनके दोस्तों को तसल्ली और नसीहत देने के लिए खुद को आज़ाद रखें, जो आपकी देखभाल और मादराना तबीयत की वजह से आपके पास आएंगे। आपके तजुर्बे में शामिल करने के लिए कुछ नया माहौल और नए दोस्तों के साथ तामुल है। आपकी मौजूदगी आपके दोस्तों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएगी। मशवरा का एक लफ्ज़ यह है कि इस हफ्ते किसी से माली मदद ना लें। तमाम गलत फहमियों को दूर करने और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए एक हफ्ता आपके लिए मुनासिब किरदार है। तनाज़ात को हल करने वाली आपकी ये फितरत आपके साथी के साथ आपके कशीदा ताल्लुकात की दवा का काम करेगी।
आपका शाइस्ता, तज़वीराती और मरूज़ी रास्ता हालात को मामूल पर लाने में मददगार हो सकता है। ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तनाव के साथ ये मशवरा दिया जाता है कि आप वक्फा लें और अपने साथ रहें। इन लोगों के लिए अच्छी खबर जो लंबी दूरी के रिश्ते में हैं, क्योंकि यह हफ्ता उनके लिए मुस्बत इशारे दिखाता है। आपकी वाबस्तगी आपको ताल्लुकात को अगली सतह तक ले जाने में मदद दे सकती है। फिनांस के पहलुओं पर आपके लिए एक मुस्बत निशानी आने वाली है। आप अपने कुछ पुराने कर्जों की अदायगी के काबिल हो सकते हैं। आपके लिए एक मुस्बत हफ्ता है और इस मुद्दत को कर्जों के दबाव और बोझ से अपने दिमाग को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा है। लिहाजा पुराने कर्जों को साफ करके अपने दिमाग को तनाव से पाक करें। जिंदगी के तई आपका मुस्बत रवैया पैसे को आपकी तरफ राग़िब कर सकता है। लिहाजा ये वो वक्त है जब आप अपनी मुकर्ररा आमदनी पर कुछ इजाफी कमा सकते हैं। इन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अपनी मुलाजमत तब्दील करने का इरादा कर रहे हैं। ये तब्दीली आपकी माली जिंदगी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद कर सकती है। लिहाजा अच्छी माली हिफाजत के लिए एक अच्छा हफ्ता और महीने आगे है। काम के महाज पर मोहतात रहें। हफ्ते के लिए मशवरा है। इस हफ्ते आपको अपने मकासद और मकासद की तकमील में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दफ्तरी सतह पर तनाव से बचने के लिए फिल्में देखने और मौसीकी सुनने का मशवरा दिया जाता है। इस तरह आप सुकून और राहत हासिल कर सकेंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक हफ्ता जो आपके पेशा वराना महाज पर बड़े फैसले लेने के हक में नहीं है। पुरसुकून रहने के लिए एक हफ्ता, क्योंकि काम के सख्त निज़ाम अलोकात की वजह से आप पर काम का दबाव बढ़ता जाएगा। सख्त काम का निज़ाम अलोकात आपके काम में ताख़ीर का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते तालीमी अहमियत को तरजीह दी जाएगी। पेशा वराना तरबियत करने वाले तलबा अपने माहिरीन तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने के लिए तैयार हों। एक ऐसा वक्त जहां आपकी मश्क आपके तालीमी शोबे का हिस्सा होगी। एक हफ्ता जहां तारीख़ की तहक़ीक़ की तरफ आपका झुकाव आपको खुश कर देगा। तारीख़ पर यह मंसूबा आपको मुतनाज़ा बना देगा। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी का वक्त। जो तलबा मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़र्ज़ी इम्तिहान देकर तैयारी करने का बेहतरीन वक्त है। ये फ़र्ज़ी टेस्ट आपकी तालीमी मनसूबाबंदी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये आपके लिए एक इंतबाह हो सकता है कि मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए तैयारी करनी है। हम बहैसियत इंसान अक्सर मौसम की वजह से खाने की तरफ माइल होते हैं, तो आपको तेल वाला खाना खाने का लालच होगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी को तरतीब देने के लिए तेल वाले खाने की अपनी आदत पर काबू रखना ज़रूरी है। कोई भी मशवरा मुआलिज की हिदायत पर अमल करना है जिससे आपको ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती हासिल करने में मदद मिलेगी। अपनी सेहत को तरजीह दें और मुनासिब वक्त के वक्फों पर बाकायदगी से चेकअप करवाएं। लिहाजा खाने की अच्छी आदत की पैरवी करने वालों के लिए सेहत के हवाले से अच्छा वक्त है। वज़न कम करने की मंसूबाबंदी करने वालों के लिए अच्छा वक्त। बाकायदगी से वर्जिश और मुनासिब खाने पर खुसूसी तवज्जो आपको वज़न कम करने के अपने मकसद को हासिल करने में मदद फराहम करेगी। अच्छी फिटनेस और क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल करने के लिए सही खाना किलीद है। मोहब्बत और क़राबत। मोहब्बत में सुलह करो। आपका हफ्तावार ज़ायचा इस हफ्ते ताल्लुकात में अमन कायम करने की बात करता है। बुर्ज अकरब। हफ्ते के मौज़ूआत। मोहब्बत की ज़िंदगी से बाहर निकलना, साज़गार हफ्ता, मुस्बत शख्सियात के करीब जाना। हफ्ता का एक खाका। जब सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा हो तो ज़्यादा मत सोचें। इस रकम के ग्रुप के लिए हफ्ते के वस्त में आपको उलझन महसूस हो सकती है। अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात में हैं और किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी तवक्कुआत को एहतियात से संभालना होगा। अगरचे शादीशुदा जोड़ों के लिए ये एक बेहतर हफ्ता हो सकता है। जैसा कि मालियात का ताल्लुक है, आप अपनी आमदनी को बेहतर बनाने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के दौरान हो सकता है। अगर आप छोटे कारोबार के साथ शुरू करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा वक्त हो सकता है और आप कामयाबी से शुरू कर सकते हैं।
कोशिश करें कि रात गए तक अपने दोस्तों के साथ गुपशप न करें। ये आपके सोने के अंदाज को नुकसान पहुंचा सकता है। तलबा के लिए किसी भी मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत के लिए ये बेहतरीन वक्त हो सकता है, क्योंकि उनके लिए कामयाब होने का एक बेहतर मौका हो सकता है। सीखने में कुछ नया शुरू करने के लिए एक अच्छा हफ्ता हो सकता है, जो बहुत अच्छा हो सकता है। इस हफ्ते के दौरान आपकी मोहब्बत की जिंदगी इंतहाई पुरजोश होने वाली है। आपको अपने साथी या प्यारों की तरफ से मुस्बत जवाब मिल सकता है, जो आपके ताल्लुकात को एक नई शुरुआत दे सकता है। ये समाजी इज्तिमाआत में जाने और नए दोस्त बनाने का भी बेहतरीन वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ इस हफ्ते का वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप एक बेहतरीन वीक एंड की तलाश में हैं, तो अपने शरीक हयात से अपने जज्बात का इजहार करना पेचीदा मसाइल से बच सकता है, और आप इस हफ्ते के आखिरी दिनों में रोमांस और जज्बे के लिए कुछ जगह तलाश कर सकते हैं। हफ्ते के दौरान सैयारों की पोजीशनें आपके माली हालात के लिए साजगार दिखाई देती है। आपकी कमाई की रकम बढ़ सकती है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपकी माली हालत बेहतर हो सकती है। ताहम आपको महीने के वस्त में माली लेन देन से गुरेज करना चाहिए। इस दौरान बड़ी माली सरमायाकारी के हवाले से जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें। साल के आखिर में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपको ये तय करना चाहिए कि आप मुस्तकबिल में अपने माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी रकम की सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं। वक्त के साथ सितारे आपके हक में हो सकते हैं। सैयारे आपको एक साजगार मुद्दत फराहम करने के लिए सफ़बंदी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने काम की जगह पर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करने के मज़ीद मौक़े मिल सकते हैं। ताहम इस हफ्ते के आगाज़ में कुछ शकूक व शुबहात और गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लिहाजा आपको होशियार काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इस हफ्ते का वक्त वजाहत फराहम कर सकता है और काम को आसान बना सकता है। आखिरी निस्फ के दौरान कारोबार में तौसी की भी तवक्को की जा सकती है। आप नई मसनूआत के आगाज़ के साथ मदद हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। इस हफ्ते का दूसरा निस्फ आपके करियर के रास्तों को अपग्रेड करने के लिए मिसाली हो सकता है। इस हफ्ते के सैयारे एक शानदार मुतहर्रिक जगह बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जहां आप अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। आपको कई अहम मकासद की बेहतर तफहीम हो सकती है, और आप मौजूदा मसाइल में से कुछ का जवाब देने के काबिल हो सकते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई में तरक्की कर सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क की मुमताज़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता दरख्वास्त का अमल शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। ये कोई भी मुसाबकती सरगर्मियां शुरू करने का एक अच्छा वक्त हो सकता है, क्योंकि आपके पास कामयाब होने का बेहतर मौका हो सकता है। जब आपको लगता है कि मनफी ख्यालात आपके दिमाग में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने आप को अच्छे लोगों से घेरने की कोशिश करें और चीज़ों और हालात का ज़्यादा तज्जिया करना छोड़ दें। दूसरी सूरत में आपको ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है, जो आपके लिए साजगार नहीं हो सकता। इस हफ्ते चिकनाई और मसालादार खानों के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश करें, जबकि ज़्यादा पानी पीने से तेज़ाबियत और दीगर बड़े अवारिज़ जैसी मुश्किलात से भी बचा जा सकता है। दोस्तों के साथ रात गुजारना और रात गए उनके साथ बातें करना आपकी नींद के अंदाज में खलल डाल सकता है। मोहब्बत व क़राबत, वाक़याती मोहब्बत की ज़िंदगी। इस हफ्ते मोहब्बत की ज़िंदगी होने वाली है। आपके प्रेमी अचाहने वाले मुस्बत जवाब दे सकते हैं, रिश्ता को गहरा करते हैं। नए लोगों से मिलने और मिल जलने का ये बेहतरीन वक्त हो सकता है। इस हफ्ते का दरमियानी दौर मुश्किल हो सकता है। अगर आप अपने साथी के साथ अपने जज्बात का इजहार अहसन तरीके से करते हैं, तो मुमकिन है आप मुश्किल मसाइल से बचें और इस हफ्ते के आखिर में रोमांस और जज्बे के लिए जगह बनाएं। सेहत और तंदुरुस्ती। सेहतमंद आदत। मनफी ख्यालात पर काबू पाने के लिए आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने आप को मुस्बत लोगों से घेर लें और हालात का ज़्यादा तज्जिया करना छोड़ दें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़हनी सेहत भी इतनी ही अहम है जितनी कि आपकी जिस्मानी सेहत। ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए मुनासिब खुराक, ज़्यादा पानी और वर्जिश का मशवरा दिया जाता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि तेज़ाबियत और नींद के मसाइल जैसे मसाइल से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। माली मामलात।
अच्छे फंड्स और फाइनेंस। यह हफ्ता माली तौर पर मददगार साबित होता है। जैसा कि हफ्ता आगे बढ़ता है, आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपको महीने के वस्त में पैसे के मामले में मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। इस वक्त के दौरान आपको मशवरा दिया जाता है कि जल्दबाजी में माली फैसले करने से गुरेज करें। आप अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं। आपको सैयारों की मदद से अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए अपना पैसा लगाने की सिफारिश की जाती है। करियर, मुलाजमत और कारोबार। करियर के नए मौके। सैयारे आपको अपने पेशे में अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के बहुत से मौके के साथ एक मिसाली दूर फराहम कर सकते हैं। बहरहाल, इस हफ्ते कुछ गैर यकीनी और गलत फहमी हो सकती है, इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि मेहनत की बजाय अपने दिमाग पर इन्हिसार करें। दरमियानी हिस्से में आपके काम की शफाफियत हो सकती है। कारोबार में तरक्की हो सकती है। एक नई मसनूआत का तारुफ हो सकता है। दूसरा हिस्सा आपके करियर को फरोग दे सकता है। बुर्ज कौस। हफ्ते के मौज़ूआत। अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने का सही वक्त। बच्चे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। खानदानी जश्न। बेरोजगारों के लिए नौकरी। हफ्ता का एक खाका। हफ्ता का मजमूई मंजर। इस हफ्ते आपकी पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ किया जा सकता है। तलबा अपने पसंदीदा मज़ामीन में आगे बढ़ सकते हैं। असातिज़ा को उनकी कामयाबियों के लिए तस्लीम किया जा सकता है। उनके अज़्म को भी तस्लीम किया जा सकता है। अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। आपके पास मुस्बत जवाब का मजबूत मौका हो सकता है। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे की फिक्र कर सकते हैं और मसाइल में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक खानदानी जश्न कार्ड पर हो सकता है। बच्चों की कोशिशों को तस्लीम किया जा सकता है और वालिदैन और असातिज़ा की मोहब्बत और ताउन उनको अच्छा काम करते रहने में मदद दे सकता है। बेरोजगार अफराद को इस हफ्ते काम मिल सकता है। ये उनके बर्ताव, इंटरव्यू की कारकर्दगी और उनकी पेशकश पर भी मुनहसिर है। इस हफ्ते रोमांस जोरों पर हो सकता है। एक लंबी ड्राइव अमियारी वक्त गुजारने के दूसरे जराए कार्ड पर हो सकते हैं। अब आपकी जिंदगी में इस रिश्ते की अहमियत का दावा करने का बेहतरीन वक्त है। आपका साथी आपके जज्बात की कदर करते हुए मुस्बत अंदाज में जवाब दे सकता है, जिससे उनके दरमियान गहरी कुर्बत पैदा होती है। अगर आपकी अभी सालगिरह है तो आप मोहब्बत, बंधन और सोहबत का शानदार जश्न मना सकते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी सरमायाकारी का दोबारा जायजा लें और उन्हें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन करने के लिए होशियार बनें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपकी सरमायाकारी की वापसी काफ़ी हो सकती है। कमा है अहम है और आपको मुअस्सिर फैसले करने पड़ सकते हैं। इस हफ्ते के माली मामलात आपके एतमाद को बढ़ा सकते हैं। रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद मकामी लोगों के लिए ये अच्छा मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन वक्त है। अगर आप एक नया करियर चाहते हैं या बैरून मुल्क काम करना चाहते हैं तो अब ऐसा होने का वक्त आ गया है। कारोबार के लिए शिराकतदार तलाश करने वाले मकामी लोग मुस्तकबिल में इसके साथ हाथ मिलाने और कारोबार बनाने के लिए एक अच्छा पार्टनर तलाश कर सकते हैं। वो नकदी की आमद में इजाफे को भी मुतासिर कर सकते हैं, जो कारोबार के लिए फायदेमंद हो सकता है। किरदार की तब्दीली के लिए सीनियर से मशवरा करना एक समझदार चीज साबित हो सकती है, जो मुस्तकबिल में अगर फौरी तौर पर नहीं तो आपके हक में काम कर सकती। जहां तक आपके जहन में मालूमात को जज्ब करने और इसे बरकरार रखने का ताल्लुक है, यह तलबा के तमाम फिरकों के लिए एक साजगार वक्त है। कुछ मुसाबकती कामों में आपकी शिरकत बिलाखिर आपकी छपी हुई सलाहियतों पर आपकी आंखें खोल सकती है। यहां तक कि अगर आप शो स्टॉप करने वाले नहीं हैं, कुछ वाकयात आपको अपनी असल कदर का एहसास दिला सकते हैं। ग्रुप स्टडीज हो सकती है, आपकी तालीम काम आ सकती है और आप मुस्तकबिल में बेहतर फैसले करने के लिए बेहतर तौर पर लैस महसूस कर सकते हैं। अगर ये फौरी नहीं है तो आपको रात गए तक बाहर जाने से गुरेज करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि आपको बाद में पछतावा हो सकता है। अगर आपको दूर सफर करना है
तो आपको मशवरा दिया जाता है कि सफ़र के दबाव से बचने के लिए मुनासिब तरीके से मंसूबाबंदी करें। आपको ये भी मशवरा दिया जाता है कि जहां तक रास्ते और नक्लो हमल का ताल्लुक है, हिफाजत के बारे में सोचें। मोहब्बत और क़राबत, प्यार और चारों तरफ से प्यार। मोहब्बत का मामला शदीद होगा। तवील रोमानवी ड्राइव्स और फिल्म की तारीखें इस हफ्ते कार्ड्स पर हैं। ये वक्त है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इससे अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का एतराफ़ करें। आप अपने आशिक से भी यही तवक्को कर सकते हैं। आपके जज्बात का एहतराम किया जाएगा। मज़ीद बरां शादीशुदा मक्र, ये हफ्ता आपकी सालगिरह मनाने और अपने साथी को अपने करीब लाने के लिए अच्छा है। सेहत और तंदुरुस्ती, महफूज रास्ता और ट्रांसपोर्ट लें। रात गए तक बाहर रहना शायद इस हफ्ते दुरुस्त ख्याल ना हो। मक्र, इस हफ्ते आपको जो ताउन मिल सकता है वो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है और आपका एतमाद छीन सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सफरी मंसूबों को मुलतवी करें या मंजिल को तब्दील करने पर दोबारा गौर करें, क्योंकि आपको तवील सफ़र करने के लिए जो दबाव पड़ेगा इसे कम किया जा सकता है। माली मामलात, ऐवान में आला रिटर्न। अपने रिटर्न को गिनना आपके मालियात को चेक करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन पेनीवार होने के नाते पाउंड बेवकूफ़ होना सही तरीका नहीं हो सकता। लिहाजा सरमायाकारी करें और इस वापसी की तवक्को करें जो आपकी आमदनी की ज़रूरियात के मुताबिक हो। आपकी वापसी ज़्यादा होगी। आपके सरपरस्त के कीमती मंसूबे आपके माली मामलात को एहतियात से संभालने से आपको खुद पर एतमाद होगा। रियल स्टेट में सरमायाकारी अच्छी लगती है, इसलिए आपको इस हफ्ते इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कैरियर, मुलाजमत और कारोबार, बढ़ते हुए कारोबार, आपकी तरक्की। बैरून मुल्क मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बड़ा रास्त आपके हाथ में दिया जाए। मकामी लोगों को एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा जो आपके कारोबार को बुलंदियों तक बढ़ा सकता है। वो कुछ सरमाया भी लाएंगे जो फ़ायदा मंद हो सकता है। अपने सीनियर्स से बात करने से आपको इस हफ्ते कुछ अच्छा तलाश करने में मदद मिल सकती है। ये फौरी तौर पर नहीं था, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आप अपने लिए मुनासिब कुछ तलाश कर सकते हैं। तालीम व तरबियत, अपनी हकीकी सलाहियत को ख़त्म करना। तलबा के लिए हर तरह की सीखने के लिए अच्छा हफ्ता। आप किसी मुकाबले में हिस्सा लेंगे और आपका साथी जजों को मुतासिर करेगा, जो आपको बेहतर नताइज दे सकता है। ये तब होता है जब आपको अपनी हकीकी महारत और सलाहियत का एहसास होता है, जो एक तवील अरसे से पोशीदा है। यह हफ्ता आपको ये भी दिखा सकता है कि तालीम के हवाले से आपका फैसला कितना दुरुस्त था। अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल में आसानी पैदा करने के लिए सदका करें और हो सके तो भूखे लोगों को खाना अतिया करें। बुर्ज जद्दी, हफ्ते के मौज़ूआत, माली फ़वाइद, मोहब्बत की तामीर, नए शौक़, मुताला, नया सीखना, सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना, आजिज़ रहना। हफ्ता का एक खाका। आगे एक मुनाफा बख्श हफ्ता। आपका हफ्तावार जायचा पेश गोई करता है कि बड़ों की तरफ से आपको तालिब इल्म के तौर पर गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के रवैये पर हमला किया जा सकता है। अब वक्त मुनासिब लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए कुछ जिम्मेदाराना इक़दामात करें। नई मुलाजमत आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तरीक़ाकार में बिल्कुल तब्दीली ला सकती है। आपको बहुत जल्द नए हालात के मुताबिक होने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार हो सकता है। आप में से जो लोग तवील अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात को तय करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, वो हफ्ता काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आपका प्यार और प्यार का इलाका आपके अक्सर दोस्तों के लिए तहरीक का हकीकी ज़रिया है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने का इरादा कर रहे हैं तो हफ्ता पहला कदम उठाने के लिए मददगार नज़र आता है। बस आजिज़ी से रहें, जो आपके काम के इलाके को आगे बढ़ा सकता है। शादीशुदा जोड़ों के लिए उनके शरीक हयात की सेहत इस हफ्ते नाजुक हो सकती है। यह हफ्ता आपके रोमानवी महाज पर थोड़ा सा धुंधला हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में अच्छी रफ्तार बरकरार रखने के लिए मतलूबा कोशिशों से ज़्यादा देना होगा।
सिंगल्स को सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि इस हफ्ते रोमानवी महाज में उनकी किस्मत नहीं है। आपके पास माजी की कुछ सरमायाकारी के जरिए अच्छे मालियाती फ़वाइद जमा करने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हैं। आपकी हफ्तावार पेशीन गोइयों के मुताबिक अगर आप सफ़र करने का इरादा कर रहे हैं तो बेहतर है कि आपको हंगामी सूरत हाल में कुछ इजाफी नकदी अपने साथ रखें। यह हफ्ता तब्दीली की मुस्बत हवाओं के साथ खुशगवार आगाज़ का आगाज़ करता है। काम में मसरूफ़ होने के बावजूद कारोबारी शख्स इस मसरूफ़ शेड्यूल से लुत्फ़ अंदोज़ होने और उससे फ़ायदा उठाने के लिए वक्त निकाल सकता है। तलबा सस्ती महसूस कर सकते हैं और पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का शिकार रह सकते हैं। अब के हफ्तावार करियर के जायचा की पेश गोई करते हैं। अच्छे नताइज का इंतज़ार है और अगर आप उन्हें चाहते हैं तो खल्फिशार को अपने रास्ते में रुकावट ना बनने दें। आप में से बहुत से लोग सुनकर सीखने के अमल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों पर तवज्जो देकर जो सही इल्म हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और न सिर्फ इम्तिहान के नुक्ता नज़र से अपने इल्म को बेहतर बना रहे हैं। सेहत और आपकी तंदुरुस्ती इस हफ्ते साथ साथ चलती है। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आपके दिल की सेहत से मुताल्लिक़ वो मसाइल जिनका आप पिछले कुछ हफ्तों से शिकार हैं हल हो सकते हैं। आपके हफ्तावार जायचा के मुताबिक बुजुर्गों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी तिब्बी हालतों पर ज़्यादा तवज्जो दें। सेहत के मामूली मसाइल को नज़रअंदाज न करें और उससे पहले कि बहुत देर हो जाए डॉक्टर से रुजू करें। मोहब्बत व क़राबत घर तक काम हासिल न करें। यह हफ्ता आपके रोमानवी महाज पर थोड़ा सा धुंधला हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में अच्छी रफ्तार बरकरार रखने के लिए मतलूबा कोशिशों से ज़्यादा देना होगा। सिंगल्स को सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि इस हफ्ते रोमानवी महाज में उनकी किस्मत नहीं है। घर के तमाम नाखुशगवार माहौल से बचने के लिए अपने काम के दबाव को अपने ख़ानदान से दूर रखें। रिश्तों में सब्र से काम लें। सेहत और तंदुरुस्ती। सेहत को कम ना समझी। इस हफ्ते के दौरान आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जिन मसाइल से आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दो चार हैं वो हल हो सकते हैं। तमाम मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी तिब्बी हालतों पर ज़्यादा तवज्जो दें। जो लोग पहले ही किसी न किसी मसले से दो चार हैं उन्हें होशियार रहना चाहिए। सेहत के किसी भी मामूली मसले को नज़रअंदाज न करें और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। माली मामलात महफूज करें और अस्पलरज न करें। मालियाती महाज पर यह हफ्ता मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। आपके पास माजी की कुछ सरमायाकारी के जरिए अच्छे मालियाती फ़वाइद जमा करने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन अगर आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है तो अस्पलूर न करें। घरेलू मामलात और ख़ानदान से मुताल्लिक़ अखराजात बढ़ सकते हैं जो इन बचतों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप सफ़र करने का इरादा रखते हैं, सफ़र पर होते हुए हंगामी हालात से बचाएं। हफ्तावार जायचा के बारे में मशवरा दें। करियर, मुलाजमत और कारोबार। तकलीफ उठे बिना राहत नहीं। काम में मसरूफ़ होने के बावजूद कारोबारी शख्स इस मसरूफ़ शेड्यूल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है क्योंकि इससे आपको मुनाफा मिल सकता है। नए क्लाइंट्स और गाहक आप से राब्ता कर सकते हैं और ये आपके कारोबार को फ़रोग़ दे सकता है। मुलाजमत करने वाले मुअस्सिर तरीक़े से कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। तलबा सस्ती महसूस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में अदम दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। कोई भी नया कारोबार शुरू करने अपने कारोबार को बढ़ाने से गुरेज करें जिसे आप अभी शुरू करने का इरादा रखते हैं। तालीम व तरबियत। मुताला के लिए मजबूत सीखना इस हफ्ते बेहतरीन रहेगा। कुछ लोग सिर्फ मुताला के मुबाहसों को सुनकर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। ये आपको एक बरतरी देगा क्योंकि ये बहुत से मुमकिना तरीक़ों से एक शानदार हफ्ता होगा। अगर आप कुछ इजाफी क्लासें लेना चाहते हैं और मुख्तलिफ मुमकिना सीखने के ज़रिए अपने इल्म को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे कि बलाग्स पढ़ना, तो हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल में आसानी पैदा करने के लिए सदका करें और हो सके तो भूखे लोगों को खाना अतिया करें। बुर्ज दिल्लो। हफ्ते के मौज़ूआत। मोहब्बत,
पैसा जाहिर करना, तंदुरुस्ती में इजाफा। हफ्ता का एक खाका, जोश व खरूश से हफ्ता। नए आइडियाज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। एक ही वक्त में बिलाक्स को ख़त्म करने के लिए अब का नुक्ता नज़र आपके रास्ते को देखा जा सकता है। वीक एंड के आसपास का दौरानिया भी जीत का सौदा फराहम कर सकता है। आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और इस तरह माली हालात साजगार रहेंगे। इस मरहले पर की गई सरमायाकारी मुस्तकबिल में भी अच्छा मुनाफा कमा सकती है। हफ्ता रोमानवी लग रहा है क्योंकि सैयारे मोहब्बत और रिश्तों को आसान बनाने के लिए अच्छी जगह पर है। ज़्यादातर हफ्ते के दौरान हो सकता है आपकी ज़हनी हालत खुशगवार हो। आपकी कारकर्दगी तमाम शुबों में बेहतर हो सकती है। आप अपने वक्त और वसाइल की निगरानी में अच्छी पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर आप अपने वक्त और वसाइल का बखूबी इंतज़ाम करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छी पेशरफ्त कर सकते हैं। आमतौर पर आपकी सेहत और तंदुरुस्ती इस हफ्ते मुस्बत रह सकती है। अगर आप किसी परेशानी का शिकार हैं तो यह हफ्ता आपको जल्द सेहतयाब होने में मदद दे सकता है। साजगार सैयारों की वजह से मोहब्बत और रिश्तों में आसानी होगी। हफ्ते का आगाज़ रोमानवी नज़र आएगा। आप माजी के रोमानवी वक्तों का इंतज़ार कर सकते हैं ताकि आप उनको पुरानी यादों में छोड़ दें और कभी कभी जब जवाब ना मिलने की वजह से मोहब्बत किसी हद तक नापसंदीदा हो जाती है तो तन्हा महसूस करें। आपकी इनफरादियत की मरूजियत आपको बामानी जिंदगी भर के ताल्लुकात को साफ करने के काबिल बनाती है। इस हफ्ते के बेशतर हिस्से में आप अमली तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान किए बगैर अपने दिमाग से खुश रह सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान सैयारों का साजगार असर आपकी ज़्यादातर मनफियत से बचाएगा और आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और इस तरह माली हालात साजगार रहेंगे। आप अपने तमाम ज़ेर-इल्तिवा वाजिबात की वसूली कर लेंगे जो आपकी माली ताकत को भी कुछ अच्छे मुनाफा के मौके के साथ बेहतर बनाते हैं। ये कदम कदम पर एक मजबूत मालियाती मंसूबा बनाने और लागू करने का वक्त हो सकता है। ये शायद अच्छे नताइज हासिल कर सकता है। इस मरहले पर की गई सरमायाकारी मुस्तकबिल में भी अच्छा मुनाफा कमा सकती है। यह हफ्ता आपको नए आइडियाज़ आजमाने के लिए जगह बनाने में मदद दे सकता है। एक ही वक्त में बिलाक्स को हटाने के लिए आपका नुक्ता नज़र फौरी तौर पर हल करने का मामला हो सकता है। आप तवक्को कर सकते हैं कि हफ्ते के दौरान आपके करियर पर मुस्बत असर पड़ेगा। इस हफ्ते के वस्त में मुमकिना तौर पर मुनाफा के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये कारोबारी लोगों के लिए इतना ही अच्छा वक्त है जितना कि आपके कारोबार की बुनियाद बनाने के लिए काफ़ी सैयारों की मदद मौजूद है। वीक एंड के आसपास का दौरानिया भी जीत का सौदा फराहम कर सकता है। अब तकनीकी तौर पर अच्छे होंगे और इस हफ्ते के दौरान तमाम शुबों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। जैसा कि हफ्ता गुजरता है आप अपने इल्म और बेहतर महारतों को फ़रोग़ दे सकते हैं। मतलूबा नताइज लाने के लिए अपनी मंसूबाबंदी और सोच के अमल को नाफिज करें। यह हफ्ता टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। अगर आप वक्त और वसाइल का बखूबी इंतज़ाम करते हैं तो आप रोक नहीं सकते। आप अपनी गिरफ्त की सलाहियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपके पास अपनी पढ़ाई को सीखने और याद रखने के लिए ख़ास हिकमत अमली होनी चाहिए। अब जितना ज़्यादा काम करेंगे इतना ही ज़्यादा हासिल करना मुमकिन होगा। यह हफ्ता आम तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्ती में है। हो सकता है कि आप अपनी तर्ज ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के बहुत ख्वाहिशमंद हो। बाज़ औक़ात इस हफ्ते के दौरान अहम बेहतरी लाने, ताकत और बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए कुछ नई तकनीकों पर अमल करने का वादा किया जाता है। ये आपकी सेहत में ज़्यादा मदद नहीं करेगा। आपको फिट रहने के लिए आजमाए गए या दिखाए गए इलाज पर कायम रहना चाहिए। इस हफ्ते अगर आपको कोई बीमारी है तो इससे आपको जल्द सेहतयाब होने में मदद मिल सकती है। मोहब्बत और क़राबत, मोहब्बत और रिश्तों को आसान बनाना। इंतहाई मरहून मिन्नत मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में मौजूद होने का रास्ता बनाती है। आप पुरानी यादों को छोड़कर माजी का रोमानवी वक्त गुजार सकते हैं। मज़ीद ये कि बाज़ औक़ात आप तन्हा महसूस कर सकते हैं जब मतलूबा रद्द अमल की कमी की वजह से मोहब्बत क़दरे पुरस्रार हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में फ़जूल रिश्तों पर तवज्जो ना दें। आप इस हफ्ते के दौरान खुश दिमाग हालत में रह सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती, महफूज रास्ता और ट्रांसपोर्ट लें।
रात गए तक बाहर रहना शायद इस हफ्ते दुरुस्त ख्याल ना हो। इस हफ्ते आपको जो ताउन मिल सकता है वो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है और आपका एतमाद छीन सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सफरी मंसूबों को मुलतवी करें या मंजिल को तब्दील करने पर दोबारा गौर करें, क्योंकि आपको तवील सफ़र करने के लिए जो दबाव पड़ेगा इसे कम किया जा सकता है। माली मामलात तरक्की के साथ बुलंदियों तक रहें। आपके सैयारे आपके हक में रह सकते हैं और असर को कम करने और आपको मनफी से बचाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अच्छे मुनाफा मिल सकते हैं और आपकी माली पोजीशन में इजाफा हो सकता है। अच्छी दौलत और मादी दौलत आपके रास्ते में आ सकती है। एक ठोस माली मंसूबा बनाने के लिए वक्त निकालें और इसे मरहलावार तरीके से नाफिज करें। ये पेशीन गोई है कि ये सरमायाकारी अच्छी वापसी ले सकती है। करियर, मुलाजमत और कारोबार, नए आइडियाज़ के साथ तजर्बा करें। यह हफ्ता आपको नए आइडियाज़ के साथ तजर्बा करने के लिए काफ़ी जगह दे सकता है। एक ही वक्त में बिलाक्स को हटाने के लिए एक फौरी नुक्ता नज़र हो सकता है। इस हफ्ते के दौरान आप अपने करियर पर कुछ मुस्बत असरात देख सकते हैं, क्योंकि मौक़े खुद को आपके सामने पेश करते हैं। ये कारोबारी अफराद के लिए इतना ही अच्छा वक्त लगता है क्योंकि वो तौसी या मुआहदे के मुंतज़िर हैं। तालीम व तरबियत, एक तकनीकी हफ्ता आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर सकता है। इन मज़ामीन को बेहतर बनाने की कोशिश करें जिन्हें आप कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने इल्म और महारत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करें। अपनी मंसूबाबंदी और सोच के अमल को इस तरह नाफिज करें कि आपकी कोशिशें आपको शानदार नताइज दें। अगर आप अपने वक्त और वसाइल को अच्छी तरह से मुनज़्ज़म करते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली वापसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल में आसानी पैदा करने के लिए सदका करें और हो सके तो भूखे लोगों को खाना अतिया करें। बुर्ज हूत, हफ्ते के मौज़ूआत पर उम्मीद रहूं। पैसा बहता है, करियर अच्छा लगता है, तालीमी रास्ते में रहनुमाई, सेहत दौलत है। हफ्ता का एक खाका, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बात करने दें। इस हफ्ते आपके तख्लीकी रस को बहने दें और इससे आपको बुजुर्गों और किस्मत का फ़ायदा हासिल करने में मदद मिल सकती है। आपकी तमाम मेहनत और अज़्म आपको बास की हिमायत और तारीफ़ हासिल करने में मदद दे सकता है। गैर मुल्की से मुताल्लिक काम का मुस्बत नतीजा आने का इम्कान है। इस हफ्ते का कारोबारी पार्टनर आपकी मदद कर सकता है, लेकिन सब्र की बातचीत का मशवरा दिया जाएगा। घर वालों से इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए बहस करने की ज़रूरत नहीं। इस हफ्ते आप अपने पहले काम को देख रहे हैं और तज्जिया कर रहे हैं कि आपने कहाँ गलत काम किए हैं। आपके मंसूबों और काम से जज्बाती लगाव मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको अमली तरीका इख्तियार करना चाहिए। ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में फैसला कुन साबित होने के लिए अच्छा हफ्ता। क़वानीन में तज़ादात हो सकते हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तबसरा करने या मनफी सोचने की कोशिश न करें। इज़दिवाजी ज़िंदगी इस हफ्ते मुश्किल दिखाई दे रही है, जिसे एहतियात से संभालना होगा। वाज़े और महफूज तरीके से बातचीत करने की कोशिश करें ताकि बातचीत आपकी इज़दिवाजी ज़िंदगी में दूरी को ख़त्म करने में मदद दे सके। मोहब्बत का रिश्ता एक दूसरे के साथ देखभाल और वक्त का तकाजा करता है। आपकी मौजूदगी से शिफा आपके रिश्ते को एक मस्बत चमक दे सकती है। आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने साथी को तहाइफ दें और अपनी ज़िंदगी में इसकी मौजूदगी की कदर करें। मुश्तरी और सूरज की मुंतकली से आपको इजाफा होने का इम्कान है। पिछली सरमायाकारी की वजह से पैसे की अचानक आमद हो सकती है। कारोबारी शख्स उन नुकसानात को पूरा कर सकता है जो हाल ही में हुए हैं, लेकिन ख़ानदानी कारोबार को ठीक करना और सियासी तरीके से हैंडल करना चाहिए। जादू से मुताल्लिक काम माली तौर पर फ़ायदा मंद हो सकता है। नीज़ थोक हिमायत याफ्ता कारोबार में कामयाबी के इम्कानात। वकला और शरीक हयात की जायदाद से अचानक फ़ायदा हो सकता है आप अपने बच्चों की तालीम पर पैसा खर्च कर रहे हों। तालिब इल्म को नए तालीमी कोर्सेज़ के लिए फंडिंग मिल सकती है।
मुश्तरी का ट्रांजिट साथी मेंबर की मदद और इंक्रीमेंट हासिल करने का इम्कान फराहम कर सकता है। इस हफ्ते कारोबार से मुताल्लिक नई सरमायाकारी नागवार नजर आती है। आपको नए कारोबारी मंसूबे और प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात रखने और प्लान की वाज़ेह तस्वीर फराहम करते हुए तस्दीक मुकम्मल करने का मशवरा दिया जाता है। ऑनलाइन या वेबसाइट से मुताल्लिक काम बहुत अच्छा हो सकता है। आपको हर काम के लिए वक्त की कदर देनी चाहिए और जल्दी से बचने के लिए एक इब्तिदाई मंसूबा बनाना चाहिए। तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के बारे में उलझन में पड़ने का इम्कान है, ताहम आपके बहन भाई और असातिज़ा उनकी रहनुमाई में मददगार साबित हो सकते हैं। हम तजवीज़ करते हैं कि अपनी खूबियों और कमज़ोरियों को जानने के लिए मश्क और ख़ुद तज्ज़िया करके आपकी महारत को बेहतर बनाया जाए। तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ मौजू से मुतवक्के कामयाबी दी जाती है। आला तालीम में कुछ रुकावटें कामयाब हो सकती हैं। आपके मुताले की वजह से घर के गांव से लंबा सफ़र अधूरी हो सकती है। तालिब इल्म को अपनी माँ से मदद मिल सकती है। इखलाकी तालीम और अज़्म आपको मतलूबा नताइज तक पहुँचा सकता है। गैर मनसूबाबंद काम की वजह से आपको तनाव हो सकता है और आपकी सेहत मुतासिर होने का इम्कान है। दांतों के मसाइल और बिस्तर खाने की आदत सेहत के मसाइल का बाइस बन सकती है। इस हफ्ते तवील मुद्दती बीमारी दोबारा सर उठाने का इम्कान है। इसके अलावा दर्द शकीका का मसला आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। पानी का सही इस्तेमाल करना और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करना ज़रूरी है। सुबह और शाम की सैर एक आम तजुर्बा होना चाहिए। आपको अपने मसरूफ़ शेड्यूल से थोड़ा सा वक्फा लेना चाहिए और सिर्फ कुछ आरामदेह लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। इससे आपको अच्छी सेहत हासिल करने में मदद मिल सकती है। मोहब्बत और क़राबत, रोमांटिक मुलाकात। आपको ससुराल के साथ मसाइल से बचने के लिए मनफी ख़यालात या बहसों से गुरेज करने की सिफारिश की जाती है, जिनको आपस में हल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शादीशुदा जोड़ों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने ताल्लुकात को नरमी से निपटाएं और गलत बातचीत से गुरेज करें। मोहब्बत के रिश्तों में इजाफी कोशिश की ज़रूरत पड़ सकती है और आपके ताल्लुकात को नए सिरे से बहाल करने के लिए कुछ मियारी वक्त गुजारने की सिफारिश की जाती है। अपने शराकतदारों की कोशिशों की तारीफ करना और तहाइफ देना आपको अपनी ज़िंदगी में उनकी अहमियत का इजहार करने देता है। सेहत और तंदुरुस्ती, फिटनेस के मामलात। ज़्यादा काम तनाव या ख़राब सेहत का सबब बन सकता है। दायमी मसाइल, ख़राब खुराक, दर्द शकीका और दांतों के मसाइल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बदहज़मी को दूर रखने के लिए रिहाइड्रेशन और मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी हो सकती है। हल्की वर्जिश और चहल कदमी की सिफारिश की जाती है। तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होना यकजहती को तोड़ने और बेहतरीन सेहत को बरकरार रखने के लिए रिचार्ज करने के लिए सफ़र करना भी ज़रूरी है। माली मामलात, मॉनिटरी ट्रीलिस। मुश्तरी और सूरज की आमद और रफ्त आपके लिए माली मुनाफा के साथ फ़ायदा मंद हो सकती है। कुछ पहले की सरमायाकारी की वजह से आपको माली फ़ायदा हो सकता है। कारोबार में होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी हो सकती है। ख़ानदानी कारोबार को नरमी और पुख्तगी के साथ संभाला जाना चाहिए। जादू से मुताल्लिक काम और होलसेल हिमायत याफ्ता कारोबार बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ससुराल और मियाँ बीवी को जायदाद से मुताल्लिक मुनाफा हो सकता है। बच्चों की तालीम और नए सीखने के प्रोग्राम अखराजात का सबब बन सकते हैं। करियर, मुलाजमत और कारोबार। काम के बारे में साथी कारकुनों की तरफ से ताउन हो सकता है और तनख्वाह में इजाफा भी हो सकता है। आपके कारोबारी पार्टनर के साथ बहस को सुकून से निपटा जाना चाहिए। यह हफ्ता नई कारोबारी सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं है। गैर मुल्की सरजमीन में इदारे रूहानियत से मुताल्लिक कारोबार कामयाब हो सकते हैं। डिजिटल मीडिया के कारोबार भी कामयाब हो सकते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि आखिरी लम्हात के ओवरलोड और घबराहट से बचने के लिए पहले से मंसूबाबंदी करें। तालीम व तरबियत। तालीम की सीढ़ी। मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करते हुए आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपके बहन भाइयों और असातिज़ा के पास मालूमात का एक कीमती हिस्सा हो सकता है। ये तजवीज़ किया जाता है कि आप अपनी महारत को बेहतर बनाएं और ख़ुद तज्ज़िया के ज़रिए अपनी ताकतों और कमज़ोरियों का तयन करें। तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ मंसूबे और आला तालीम कामयाब हो सकते हैं।
تعلیم سے متعلق کوئی سفر ممکن ہے۔ ماں پڑھائی میں مدد کر سکتی ہے۔ اخلاقی بیداری اور عزم آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صدقہ کریں اور ہو سکے تو بھوکے لوگوں کو کھانا عطیہ کریں۔